بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب زدنی علما۔ ٹائپس کسے کہتے ہیں کرن بیٹی آپ بتاؤ؟ شاباش، اسم کو۔ اب آپ کے کتنی ٹائپس آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، پہلے کہیں پڑھی ہو؟ امجد کتنی ٹائپس ہیں اینٹی باڈیز کی؟ بیٹے جو ہم آپ کی بک میں پڑھ رہے ہیں وہ 5 بتائی گئی ہیں۔ آن دی بیسس آف ڈفرینسز ان ہیوی چینز، یہ جو ٹائپ ہے یہ کس بیس پہ ذوالفقار؟ on the basis of difference on the basis of بیٹے کس بیس پہ on the basis of difference in the region of heavy chain in the heavy chain region۔ بیٹے جو ہم نے پورشن پڑھے ہیں، اب ہیوی چین کا جو کانسٹنٹ ریجن ہے، ہیوی چین ریجن جو کانسٹنٹ ریجن ہو اس میں جو ڈفرنس ہو، اب اس میں کون سا ہے؟ یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ نیچے والا اس کا کانسٹنٹ پورشن ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا امجد، کہاں ہوتا ہے کانسٹنٹ پورشن؟ نیچے والا کہاں؟ یہ والا، یہ والا؟ چلو شاباش بیٹے، ان میں جو فرق ہوگا ان کی بیسس پہ ہم نے یہ 5 ٹائپس پڑھنی ہے۔ اس کا ہم ایبریویشن کیا بنا سکتے ہیں؟ ایک ورڈ آپ نے سنا ہوگا مجاہد، اسی ورڈ کو ہم اگر اس طرح یاد رکھ لیں، MGAED، مگائڈ، ٹھیک ہے؟ ویسے یہ میں بیٹے ترتیب ہمیں اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو پھر ذرا سمجھ آئے گی ترتیب کیوں ہمیں۔ ویسے میں نے فارمیسی کے دوران اسے یاد کیا تھا، جمڈائی، جمڈائی، میں اپنی بتا رہا ہوں لیکن اب آپ کو میں اس طرح پڑھانا چاہ رہا ہوں، مگائڈ۔ آپ نے ترتیب سے یاد رکھنا ہے، اس کی آپ کو ابھی امپورٹنس پتہ چلے ترتیب، MGAED، یا اور اس کا کیا ایبریویشن رکھ سکتے ہیں آپ؟ ہاں، MAGD، ماگڈ یا ماجڈ، جو بھی آپ کو یاد رہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب بیٹے اینٹی باڈی کا دوسرا اور کیا نام ہے؟ ابھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اینٹی باڈی کو اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ امیونو گلوبولن، امیونو گلوبولن۔ اس کا ایبریویشن AB کے طور پہ لکھا ہوتا ہے اینٹی باڈی، یا اگر یہ امیونو گلوبولن لکھا ہو تو IG مطلب امیونو گلوبولن، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان کے شروع میں ہم کیا لگائیں گے؟ اینٹی باڈی M، یا امیونو گلوبولن IgM، IgG، IgA، IgE، IgD، ٹھیک ہے بیٹی؟ پہلی اینٹی باڈی کون سی ہے؟ ٹھیک ہے بیٹے، آپ نے کبھی ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کروایا کسی نے؟ اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ IgG اور IgM دونوں یہ اینٹی باڈی کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایک بندے کا اگر IgM ٹیسٹ پازیٹیو ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسے ٹائیفائڈ ابھی شروع ہوا ہے، اگر اس کا G پازیٹیو ہو تو مطلب اس کا ٹائیفائڈ پرانا ہے۔ یہ بیٹے یہ آپ کے پاس نا بہت ساری رپورٹیں آئیں گی تو وہ لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں، جو بیچارے اس فیلڈ کے نہیں ہیں اور روزی روٹی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں 1 گرام انجیکشن لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ مطلب اس کا یہ ہے IgG ٹیسٹ ہے، وہ لکھا ہوتا ہے IgG پازیٹیو IgG نیگیٹو، وہ کہہ دیتے ہیں بھجن آپ کو 1 گرام ٹیکا لکھا ہوا۔ یہ میں نے کیس ایک تو دیکھے ہیں، اصل میں وہ بیسیکلی ان اینٹی باڈیز کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ اب بیٹے دیکھتے ہیں ہے کیا چیزیں یہ۔
types of antibodies on the basis of differences in heavy chains in the constant region. Here the IgG stands for immunoglobulin. अब हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन में जो फर्क है जुल्फ़कार, सिर्फ हम इस चेन को कंसीडर कर रहे हैं, हैवी चेन को और इसके कांस्टेंट पोर्शन को, उनकी बेसिस पे हमने 5 क्लासें पढ़नी है. अब पहली क्लास कौन सी है? IgM is the antibody of primary antibody response. जो फर्स्ट रिस्पांस बॉडी देती है, पहले कोई जरासीम जिस्म में गया तो पहला जो रिस्पांस आता है उसके उसमें पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी एम, IgM. अब एक बंदे का टाइफाइड में IgM पॉजिटिव हो, मतलब उसका वो टाइफाइड पुराना है या नया है? तो आपने बेटे पढ़ लिया ना, प्राइमरी रिस्पांस में जो पैदा होती है IgM. शाबाश. It is the first antibody to appear in the circulation after stimulation of beta lymphocyte. बेटे आपने ब्लड सेल्स पढ़े हैं, कितनी किस्म के थे? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट. व्हाइट ब्लड सेल की आपने आगे किसमें पढ़ी थी? ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट. और आपने मजीद उनको जब देखा था तो बी लिम्फोसाइट आपने देखे थे, याद आया थोड़ा बहुत है? चलो शाबाश. अब बेटे बीटा लिम्फोसाइट के रिस्पांस में IgM पैदा होती है. बेटे बुक की बजाय ना इधर तवज्जो किया करो, ये सारा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरा लेक्चर, इधर जरा समझ लिया करो बात. It is the first antibody to appear in the circulation after stimulation of B lymphocyte. अब क्वेश्चन आ जाए, which one is the first antibody to appear in the circulatory system after antibody response is antibody G, D, A, none of these. चलो शाबाश. अब IgG दूसरी एंटीबॉडी है IgG, या एंटीबॉडी G या इम्यूनोग्लोबुलिन G. It is the classical gamma globulin. The antibody is the major circulating antibody. IgG appears after 24 to 48 hours after the antigenic stimulation and continues the antigen antibody reaction who begins by IgM. अब एक बंदे का IgG टेस्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है उसे इन्फेक्शन कितने घंटे पुराना है? शाबाश. यानी इसे बुखार हुए हुए कम से कम 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं, हो सकता है वो 6 महीने हो गए, ठीक हो गया. अब ये दूसरा उसने हमें बता दिया. अब बेटे ये साइज में सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होती है? ये तस्वीर बनी हुई है IgM, और उस IgA और IgM साइज में दो G, E और D से बड़ी है. ये वैसे आपने याद रखना है अगर क्वेश्चन आ जाता है. अब IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A. अब IgA की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, सीरम IgA और सेक्रेटरी IgA. सीरम क्या होता है? ठीक है बेटे, ये इसे जरा गूगल क्रोम करके आना, GC करो इसे. जुल्फकार बहुत अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन आपने देख के आना इसे. क्या देख के आना आफ्ताब आपने? ठीक है, ये गूगल करके आना आपने सीरम होता क्या है. और ये बहुत सारे जो मरीज बेचारे तंदुरुस्त ना हो रहे हो तो उन्हें हम सीरम भी लगाते होते हैं. क्या लगाते हैं अली? क्या चीज? हाँ, वो एंटी एजिंग सीरम होते हैं. अब जिस तरह मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब अल्लाह ने अगर जिंदगी दी, तो वो जो झरियां नहीं बन जाती, वो सीरम क्या करता है? जिल्द को खींच के रखता है. तो वो एंटी एजिंग सीरम भी मार्केट में मौजूद है. सीरम आपने पढ़ के आना होता क्या है. अब बेटे ठीक है. अब इम्यूनोग्लोबुलिन ए की 2 टाइप्स हैं, सीरम IgA और सेक्रेटरी. सक्रेशन किसे कहते हैं? खारिज होना.
सीरम IgA is found in serum and is similar to IgG. अब ये किस में पाई जाती है? सीरम में। और किस से मिलती जुलती है? IgG से। अब secretory IgA is found in बॉडी secretion. मसलन पसीना जो निकलता है वो क्या होता है? secretion है। अब जो थूक निकलता है वो क्या है? शाबाश। It comes from epithelial cells and helps to move the antibodies into the secretions. It provides resistance in the respiratory and GIT tracts. It is also located in tears, saliva, colostrum. tear किसे कहते हैं? आंसू। और saliva थूक। और colostrum क्या होता है? बेटे बोली का वर्ड सुना आपने? आपकी लैंग्वेज में क्या हसन बोली कहते हैं? पंजाबी में इसे बोली बोली कहते हैं। जब एक गाय भैंस बच्चा देती है ना, तो वो फर्स्ट टाइम जो दूध होता है उसे ना बोली कहते हैं, खीस चले कहते हैं। तो उसे मेडिकली क्या बोलते हैं? क्लोस्ट्रम। उसमें क्या चीजें मौजूद होती हैं कुदरती तौर पे? बेटे अभी तो आपने पढ़ा है, क्या मौजूद होता है? एंटीबॉडीज। और स्पेशली कौन सी एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं? IgA। अब आप माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे। आप कोई इंटरव्यू में बैठे हैं, वो कहें जी इंटरव्यू देते देते आपको वीडियो दिखाएं, ये गाय का बच्चा पैदा हुआ है, ये अब दूध पी रहा है, ये कौन सी एंटीबॉडी इसके अंदर जा रही होगी? IgA। बेटे हमने पढ़ लिया जो भी सक्रीशंस में एंटीबॉडीज होती हैं वो कौन सी होती हैं? अब एक बंदा रो रहा है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, एक बंदा पहले गया है, या आपका बड़ा भाई था वो रो रहा है, आपने उसके आंसू साफ किए हैं वो एग्जामिनर के सामने, उसकी हमदर्दी हासिल, वो कहे आपकी हाथों पे कौन सी एंटीबॉडीज लगी हैं, आप क्या कहेंगे? अब एक बंदा इस तरह बेचारा बोल रहा है, उसके मुंह से थूक निकल रहा, गुस्सा चढ़ गया, देखा वो हम शैतान हम पे कब्जा कर लेता है, वो थूक निकल, मैं तुझे अभी लम्बा डाल दूंगा। तो वो बेटा थूक में क्या होता है? शाबा। ये अब याद रहेगा आपको इंशाअल्लाह ताला। अब बेटे चौथे नंबर पे कौन सी एंटीबॉडी है? अब IG क्या होती है? प्लेज अ मेजर रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस बाय सेंसिटाइजिंग सेल्स टू सर्टेन एंटीजेंस। बेटे जो भी जिस्म पे एलर्जी, एलर्जी की तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो लोग इस तरह कर रहे होते हैं, इस तरह कर रहे होते हैं, वो क्या होती है? एलर्जी। उसमें किस एंटीबॉडी का रोल है? तो वो क्या करती है? एंटीजन को सेंसिटाइज करती है। बेटे अंडरस्टूड? सेंसिटाइज करना, महसूस करना, जिस तरह सेंसिटिव नहीं होता है, मैं कहूँ जी फलाना बंदा बहुत सेंसिटिव है यार, उससे ना ऊंची आवाज में बात न करना यार, वो बहुत सेंसिटिव है, हसास। शाबाश। अब पांचवें नंबर पे कौन सी एंटीबॉडी बताई है? शाबाश। हमने क्या वर्ड पढ़ा था? मजाइड, मगाइड, ठीक है, डी। बोथ द फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस आर प्रेजेंटली अनक्लियर। यानी ये वो एंटीबॉडी है जिसका अभी तक ना ही काम पता है और ना ही अहमियत के इसका फायदा क्या है, वो अनक्लियर है। हाउएवर इट इज अ सेल सरफेस रिसेप्टर ऑन द बीटा लिम्फोसाइट्स टुगेदर विद IgM। IgM और IgD ये सेल की सरफेस पे मौजूद होते हैं ताकि वो जो भी एंटीजन आते हैं उसे रिसीव करते हैं। जिस तरह कोई भी मेहमान आए, हम दरवाजे के बाहर खड़े हों, तो ये दोनों माशाल्लाह सेल की सरफेस पे उनको खुश आमदीद कहने के लिए जो भी एंटीजन आता है उसके वेलकम के लिए तशरीफ फरमा होते हैं। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड समझ लें या चीफ गेस्ट, वो समझ लें, होस्ट समझ लें।